What C6H5 represent phenylic group. Okay. So this molecular formula we can represent by this also. So this is example of one phenyl ethanol. This is one phenyl ethanol. Again, this is the two phenyl ethanol. This is phenylic group. This is the C6H5, and this is 2-methyl propane 2-ol. 1, 2, 3. On carbon number 2, phenylic group as well as alcoholic group is present. On carbon number 2, phenylic group C6H5 as well as OH group is attached. So IUPAC name for this compound will be 2-methyl propane 2-ol. Okay. We have studied that alcohols are divided into two categories, aliphatic alcohol and aromatic alcohol. Further, aliphatic alcohols are classified into primary 1 degree alcohol, 2 degree alcohol, and 3 degree alcohol. 1 degree alcohol, 2 degree alcohol, and 3 degree alcohol. 1 degree alcohol, 2 degree alcohol, and 3 degree alcohol. Now we are going to discuss what is 1 degree alcohol, what is 2 degree alcohol, and what are the 3 degree alcohol, as well as uh, if alcoholic if alcoholic group are attached to the alcohols, alcohol are 1, if 2 alcoholic group are present, then what is the compound, and if 3 or more than 3 OH group is attached, then what will be the compound of alcohol. So if uh, so alcohol and phenol may be classified into monohydric, dihydric, trihydric, and polyhydric according to they contain 1, 2, 3 or more hydroxyl group. Suppose if only one OH group is present, only one OH group is present in aliphatic hydrocarbon, or in any alcohol or in any alcoholic compound, only one OH is present in alcoholic compound, only one OH is present. सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? Monohydric alcohol. So ethanol is example of monohydric alcohol. See, we can see OH is only one in this compound only one OH is present, so it is a monohydric alcohol. Mono means one and hydric means OH group. This is the formula of glycol, and glycol is dihydric alcohol. Why it is called dihydric alcohol? Because two OH group are present on different carbon. Two OH groups are present, so it is called dihydric alcohol. This is the glycerol, or we can say glycerin. This is the example of uh, trihydric alcohol. Glycerin or glycerol are example of trihydric alcohol. Why it is called trihydric alcohol? Because in glycerol, three OH group are attached. Three OH group are there in glycerol or glycerin. This is the example of polyhydric alcohol. If more than three OH group are present, अगर तीन से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद है किसी भी एल्कोहलिक ग्रुप में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल. Next is aromatic alcohol. In aromatic alcohol, the simplest aromatic alcohols are phenol. So in phenol, only one OH is present, so it is example of monohydric aromatic alcohol. It is example of monohydric aromatic alcohol. Monohydric aromatic alcohol. Monohydric aromatic alcohol. This is the example. This is the formula of resorcinol. In resorcinol, the number of OH are 2. The number of OH are 2. So it is dihydric aromatic alcohol. This is the hydroquinone. In hydroquinone, the total number of OH are 3. So it is a trihydric aromatic alcohol. This is the hexaphenone. In hexaphenone, there are 6 OH groups are present.
6 OH groups are present, so it is called polyhydric alcohol. It is example of polyhydric alcohol. So again, monohydric alcohol. Monohydric alcohol means only one OH group is present. Only one OH group is present on the carbon chain. Then it is called monohydric alcohol. In our syllabus, we have to study only monohydric alcohol and not the dihydric, trihydric alcohol. So monohydric alcohol containing sp3 carbon atom. So sp3 carbon atom, according to sp3 carbon atom, the monohydric alcohol according to monohydric alcohol which contain sp3 single bond OH bond, single bond OH. So simplest alcohol that we have to study will be monohydric alcohol. In monohydric alcohol, see, this is the primary, secondary and tertiary alcohol. The alcohol which in which the OH bond is connected to those carbon which have only single covalent bond, so are called sp3 OH bond. They are called sp3 OH bond. For example, see here, this is OH functional group, hydroxyl group, and this hydroxyl group is attached to the carbon, and this carbon is again connected to another hydrogen and carbon by single covalent bond. If single covalent bond is present in between carbon and hydrogen, then it is example of primary alcohol. Sorry, it is example of uh, carbon which having hybridization of sp3. The hybridization of this carbon is sp3. sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चों, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, OH का OH bond is connected to those carbon. If that carbon is connected to only single covalent bond, then that carbon will be sp3 का hybridized carbon, and the bond will be carbon sp3 OH bond. Okay, this is the hybridization of this carbon. And this is also called 1 degree. Why it is called 1 degree? Because OH bond जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों, OH bond जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है. This carbon has 4 valency. First valency is satisfied with the functional group, OH group, and another 2 valency of this carbon is satisfied with hydrogen only. And fourth one valency of this carbon is satisfied with CH3 group, methyl group. So this carbon is 1 degree carbon. ये कार्बन कौन सा है बच्चों? 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि OH कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH बॉन्ड, OH का जो ये बॉन्ड है बच्चों, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन. सी इन दिस एग्जाम्पल, OH bond, OH is attached to this carbon, and this carbon further connected to 2 carbon. ये जो कार्बन है बच्चों ये आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है. ये ग्रुप हो गया मिथाइल ग्रुप, एक यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जो फोर्थ वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई है? हाइड्रोजन से. तो OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों, OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन. ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये 2 डिग्री कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp3. sp3 कैसे होगा? क्योंकि ये बॉन्ड, ये जो कार्बन है वो सिर्फ क्या बना रहा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. अगेन दिस इज द 3 डिग्री एल्कोहल. ये 3 डिग्री एल्कोहल है. ये कैसे पता चला हमें? OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अगर आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन एंड नंबर 3 कार्बन, ये जो कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp, the hybridization of this carbon is sp3, hybridization of this carbon is sp3, and again example of monohydric alcohol, monohydric alcohol है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये कार्बन कौन सी डिग्री का कार्बन है, 3 डिग्री का कार्बन है, क्योंकि ये जो कार्बन है जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। तो इन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, डैश CH3OH, CH2OH, डैश एंड डैश CHOH एंड COH, और इसमें तीन बॉन्ड अगर फ्री है और तीनों बॉन्ड अगर अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मतलब क्या है, ये डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, R, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, R, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, R, मतलब इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, और यहाँ पे लगाया C, और यहाँ पे लिख दिया OH, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या है, R है, इधर क्या है, R है, मतलब एल्काइल ग्रुप, मतलब यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, तो OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन में देखो इस टाइप से, ये कार्बन, ये CH, और यहाँ पे हम OH लगा सकते हैं, ऐसे OH लगाया हमने, तो ये जो CH है बच्चों, ये यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन दो आगे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, इसी तरह से ये 1 डिग्री कार्बन। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, दैट इज एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, इसमें ध्यान से समझना बच्चों, एलाइलिक एल्कोहल क्या होता है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, एलाइलिक एल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चों, OH बॉन्ड, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद sp3 होगा, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद, उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों, sp3 होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, अभी हमने बताया था अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। तो OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास का कार्बन, उसके पास वाला कार्बन मतलब सेकंड नंबर कार्बन, उसका हाइब्रिडेशन अगर क्या हो, sp2 हो, तो इस टाइप के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक एल्कोहल। इसका मतलब OH बॉन्ड, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके पास का कार्बन, उसके पास वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या उसका हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, sp2 है, तो इस टाइप के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक एल्कोहल। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, sp3, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, sp2। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के पास का कार्बन, इस कार्बन के पास वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मतलब वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये एल्कोहल कौन सा हो जाएगा बच्चों, एलाइलिक एल्कोहल। ये हो गया एलाइलिक एल्कोहल। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, sp3, sp3। तो हमें सिंपल बात क्या ध्यान रखनी है, जैसे एक ये एल्कोहल दे दिया, ये यहाँ पे मैंने लिखा C, यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा मैंने C, और यहाँ मैंने लगा दिया OH, और इसकी बाकी की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है, दीज 1 2 3 4 एंड 1 2, बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, तो ये OH बॉन्ड किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। इसके पास का जो कार्बन है ना, इसके पास का जो कार्बन है ये वाला 2 नंबर का कार्बन, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। तो ये कौन सा कार्बन है बच्चों, ये कौन सा कार्बन हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया, एलाइलिक एल्कोहलिक ग्रुप हो गया।
हाँ, इसी टाइप से हम पढ़ेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। जैसे अभी हमने पढ़ा था एलियालिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल किसमें पॉसिबल है बेटा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ही क्या बनाते हैं? एलाइलिक एल्कोहल बनाते हैं। एलिफेटिक एल्कोहल फॉर्म एलाइलिक एल्कोहल। इन एलिफेटिक एलाइलिक एल्कोहल्स आर पॉसिबल। तो बेंजाइलिक एल्कोहल किसमें बनेंगे? जिसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद हो। तो बेंजीन रिंग मौजूद है, मतलब ये जो कार्बन है बच्चों, ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना बच्चों, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके पास का कार्बन, ये वाला कार्बन, ये यहाँ पे एक कार्बन है, ये किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक एल्कोहल। दिस इज द बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल है। तो ये भी क्या बेंजाइलिक एल्कोहल है बच्चों? ये देखो, ये मैंने कुछ एक स्ट्रक्चर बनाई है, आप पहचान गए होंगे ये स्ट्रक्चर क्या है। आप पहचान ही गए होंगे ये स्ट्रक्चर। ये मैंने क्या बनाया है? फिनॉल की स्ट्रक्चर बनाई है। दिस इज द फिनॉल। तो ये भी क्या बेंजाइलिक एल्कोहल है? इट इज नॉट बेंजाइलिक एल्कोहल बिकॉज OH bond is connected to carbon and that carbon is directly connected to double bond, so it is not benzylic alcohol। ये बेंजाइलिक एल्कोहल नहीं है। तो ये कौन सा एल्कोहल है? ये विनाइलिक एल्कोहल है। विना वो, वो हम फिनाइलिक एल्कोहल है। दिस इज द फिनाइलिक ग्रुप, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। देखो इसमें बच्चों, ये OH बॉन्ड, ये OH जो ग्रुप है बच्चों, एल्कोहलिक ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके पास का कार्बन, ये वाला पास है, ये कार्बन, ये किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बेंजाइलिक एल्कोहल का। जैसे हमने एलिफेटिक में पढ़ा था ना, वैसा वैसा हमें एरोमेटिक में पढ़ना है। इसमें भी हमने देखा था OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके पास का कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके पास का कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वो एलाइलिक एल्कोहल है। तो इसमें भी सेम ही है। OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके पास का कार्बन अगर कौन सा है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक एल्कोहल। सिमिलरली इन दिस सेम, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके पास का कार्बन कौन सा है बच्चों? ये वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक एल्कोहल। नाउ अगेन, benzylic alcohols are also classified into 1 degree, 2 degree and 3 degree। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? ये जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, इस कार्बन, ये देखो कार्बन, ये कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसकी दो जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चों, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, बाकी दो वैलेंसी इस कार्बन की किससे सेटिस्फाई है? इस हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। इस हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है, दो वैलेंसी इस हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। तो ये कौन सा कार्बन है बच्चों? 1 डिग्री कार्बन है। कौन सा वाला? ये वाला कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री कार्बन। ओके, सिमिलरली हियर, OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो कार्बन है बच्चों, ये आगे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखो, एक मिथाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे फिनाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है बच्चों, ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन है वो ऊपर CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कौन सा हो गया बच्चों? 2 डिग्री कार्बन है। ये 2 डिग्री कार्बन है। दिस इज द 2 डिग्री कार्बन। अगर आपको पूछे ये कौन सा कार्बन है, कौन सा डिग्री का कार्बन है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। अगर ये पूछे आपको ये इस कार्बन का डिग्री बताओ, कौन से डिग्री का कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ 1, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ 2, और ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये 3 डिग्री कार्बन है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेल। अगेन इन दिस, इसमें भी सेम ही है। आगे हम पढ़ते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड। इसका मतलब है OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना बच्चों, वो खुद ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो। जैसे इसके अंदर हम देखेंगे विनाइलिक एल्कोहल एग्जांपल, OH बॉन्ड देखो बच्चों, OH बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना,
ये कार्बन खुद डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड है। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है बच्चों? sp2। दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। OH ग्रुप जिस कार्बन